Good evening. Good evening, Mithilesh. Fine, Mithilesh. Good evening, Apurva. Good evening, Chaitanya. Good evening, Swayam. Fine, Apurva. Good evening, Dipti. How are you all? Good evening, Gunjan. Good evening, Paki. Good evening, Aryan. Good evening, Mudit. Good evening, Abhinav. Thanks a lot, Samika. Good evening. So रिवाइज किया आपने लास्ट क्लास का? Yes. So let's do some revision part by solving some questions. So this is the first question for you all. Recombinant DNA technology, it involves several steps in which initial step is of isolation of DNA. Which enzyme are used in the process for the breakdown of fungal cell, plant cell and the bacterial cell respectively? Can I give you the poll? Good evening. It's okay, Anshika. So I'm giving you the poll. Please give me the correct answer. Good evening, Nidhi. Jatin, wrong answer. Rimchim, please refresh from your side. Shivani, wrong answer. Do it fast, students. Yes, Samika. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Poll close. The correct answer is yes. The correct answer is B1. You know that the fungal cell wall, it is break with the help of chitinase enzyme. Plant cell wall, it is made up of cellulose and it is break with the help of cellulase enzyme. And the bacteria cell wall, it is break with the help of lysozyme. So the correct answer is option B. Now the next question, how are transformant selected from non-transformant? Presence of more than one recognition site? Yes, Nidhi. Presence of more than one recognition site in the vector DNA. Presence of alien DNA into the vector DNA. Result into the insertional inactivation of the selectable marker. Antibiotic resistant gene get inactivated due to insertion of alien DNA. Both B and C. Can I give you the poll? Poll? Yes. Please give me the correct one. Absolutely correct. Do it fast, students. No, no, no. Vaishnavi, Paki, wrong answer. जल्दी किया आपने. खुशी, नवांशी, wrong answer. आपने भी जल्दी किया. इस वजह से गलती की आपने. Do it fast. हर्षिता, wrong answer. Very, very wrong answer, हर्षिता. ये तो possible ही नहीं था. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Now I'm closing your poll. The correct answer is D. बेटा हम ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से कैसे सेलेक्ट करते हैं? आप जानते हो हमने 2 मेथड्स पढ़े थे. वन वी हैव डन अबाउट द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कि अगर हमने फॉरेन डीएनए को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाली साइड पे रखा तो एंटीबायोटिक स्क्रीनिंग 1, यस बेटा स्क्रीनिंग 1 इट इज यूज्ड फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट. तो आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के थ्रू. अगर हमारा फॉरेन डीएनए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन वाली जगह पे इंसर्ट हो गया तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन गेट इनएक्टिवेटेड ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ एलियन डीएनए, दैट इज अ फॉरेन डीएनए.
बी स्टेटमेंट भी करेक्ट है. हमने पढ़ा था कि जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मेथड एज अ सेलेक्टेबल मार्कर, इट इज अ क्यूम्बरसम प्रोसीजर, क्योंकि आपको बार बार प्लेटिंग करनी पड़ रही है. फिर हमने उसके बाद कौन सा मेथड यूज किया था, दैट इज ब्लू एंड व्हाइट स्क्रीनिंग, जिसके अंदर आप लैक्जेट जीन को इनएक्टिवेट कर देते हो. एज अ रिजल्ट व्हाइट कॉलोनीज टू बी फॉर्म. सो दिस बी, इट इज फॉर द लैक्जेट जीन, and the C, it is for the antibiotic resistance. So both are the correct. So the correct answer is D1. Is it clear to everyone? जिन्होंने भी गलत आंसर किए. बेटा, presence of alien DNA, that is a foreign DNA, into the vector DNA result into the insertional inactivation of selectable marker. आप जानते हो ना कि अगर हम कोई भी फॉरेन डीएनए को वेक्टर डीएनए के अंदर इंसर्ट कर देते हैं तो सेलेक्टेबल मार्कर कैसा हो जाता है, इनएक्टिवेट हो जाता है. हमने लैक्जेट जीन के लिए भी पढ़ा था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के लिए भी पढ़ा था. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ PBR322 वेक्टर. इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक PBR322 का नहीं है. इट इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर constructed in 1977 by Bolivar and Rodriguez. It is the most widely used, versatile and easily manipulated vector. It has two antibiotic resistance genes, tetracycline and ampicillin resistance. It does not have a restriction site for SAL1. I'm giving you the poll. Please give me the correct answer. Do it fast, students. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Now the poll close. करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, डी ऑप्शन होना चाहिए. प्रिया, आपने रॉन्ग आंसर दिया है. Here it is given which is not a characteristic of PBR322. बताती हूँ. पहले आप मुझे बताओ, SAL1 का रिस्ट्रिक्शन साइट नहीं प्रेजेंट होता. Where the SAL1 restriction site is to be present? Into that of tetracycline, na? There is a presence of BAMH1 and SAL1. तो ये तो सबसे important ही है. So it is not a characteristic of PBR322. It is a most widely used, versatile and easily manipulated vector. प्रिया, इसको हम आसानी से मैनिपुलेट कर पाए तभी तो हमने PBR322 से सीधा पकेट बना लिया. सो हम उसे आसानी से मैनिपुलेट कर पा रहे हैं, उसके अंदर सेलेक्टेबल मार्कर्स को इंट्रोड्यूस कर पा रहे हैं. सो दिस इज अ करेक्ट वन. इट हैज अ 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, तो ये भी करेक्ट है. एंड इट वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर. तभी आप PBR322 कह रहे हो बिकॉज ऑफ बॉलिवर एंड रॉड्रिगेज. नहीं, वाइडली यूज्ड की बात नहीं है प्रिया. PBR322 हम लोग नॉर्मली वैसे यूज करते हैं अगर हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस चाहते हैं एज अ सेलेक्टेबल मार्कर. ओके, और वैसे हम उसे आसानी से मॉडिफाइड भी कर सकते हैं. सो दैट इज व्हाई द बी स्टेटमेंट इट इज आल्सो करेक्ट. मोरेवर आप प्रिया, आप जानते हो पक8 का इंट्रोडक्शन एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिया हुआ. सो अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर के अंदर PBR322 इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड बिकॉज द पक8 इट इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी आल्सो. अंडरस्टैंड? बस उसमें यही लिखा गया कि PBR322 को मॉडिफाई करा गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की जगह लैक्जेट जीन का इंट्रोड्यूस किया गया है. सो द करेक्ट स्टेटमेंट हियर इज अ D1. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑल. द करेक्ट ऑर्डर of the processing of PCR. You know that the PCR, polymerase chain reaction. Very nice. So I'm giving you the poll. Please give me the correct answer at least for this question. 100% I need. Absolutely correct, students. Do it fast. Oh no. Riya Muskan, wrong answer. Kedar, wrong answer. Do it fast. No, 100% finally, Priya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, yes, mother, 2, 1, 0. Now the poll close. The correct answer is yes, second one. हमने पढ़ा था PCR के बारे में, polymerase chain reaction, and that was discovered by Kary Mullis, and he got Nobel Prize for it. PCR के अंदर सबसे पहले आप DNA strands को सेपरेट करते हो, and this process it is called as denaturation.
Denaturation, it occurs at which temperature? That is 94 डिग्री सेल्सियस पे आप denaturation करते हो. Then it is a primer annealing at that a 5 prime end, 5 prime to 3 prime end के ऊपर at 50 to 60 degree Celsius. And the extension, it is done with the help of Taq polymerase. बेटा Taq polymerase को हमने पढ़ा था. Taq polymerase, it is obtained from that of Thermus aquaticus, and it is a thermostable enzyme, and it require magnesium ion for its activity also. बेटा हमें याद रखना है कि Taq polymerase को अपनी एक्टिविटी करने के लिए किसकी जरूरत होती है? मैग्नीशियम आयन की. And it extend the DNA at that of 72 degree Celsius. Clear to everyone? Clear? Now the next question, what is the source of Eco R1? Eco R1 के अंदर उसका source क्या है? Escherichia coli R1, Escherichia coli R113, Escherichia coli RY13, Escherichia coli RX13. I think so. It's also very easy question. I need correct answer. Very nice. Priya Balla, I'm not happy from your response. आज गलत हो रहे हैं बहुत. साक्षी आस्था आही, wrong answer. Pratiksha Nidhi Chaitanya, wrong answer. Nidhi, also wrong answer. Yes, Nidhi. Do it fast, students. Gunjan answer correct and the fastest answer. Not revise ना प्रिया, revise करके आना होता है रोज. नहीं ऐसा नहीं करना ना, ऐसे नहीं चलेगा. डॉक्टर बनना है आप लोगों को तो आपको रेगुलर होना होगा, डिसिप्लिन होना होगा. सो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yes, the correct answer is 3. हमने पढ़ा था कि अगर हमें नेमिंग करनी होगी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की, so the first letter it denote for that of a genus, CO refers to that of a species, R refers to that of a strain जो हमने पढ़ा था RY, and the आगे जिसका numerical number है that is 13. So the correct answer is C. Plasmid vector in a DNA recombinant technology means, plasmid का मतलब क्या है यहाँ पे? A virus that transfer the gene to the bacteria, extra chromosomal autonomously replicating circular DNA, sticky end of the DNA, any fragment of the DNA carrying desirable gene. I'm giving you the poll. This is also an easy one. Soham, Sakshi, wrong answer. अभी easy लग रहा है ये chapter. This is all about the concept based. जिसे भी concept समझ में आ गया वो सही answer करेगा. Learning work करने की जरूरत नहीं है इसमें ज़्यादा. Do it fast, students. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Now the poll close. Who is the fastest? मैंने नहीं check किया. चलो मान लेते हैं मुदित fastest था. So the correct answer is B1. That is an extra chromosomal autonomously replicating circular DNA. आप उसे क्या कहते हो? That is plasmid. So बेटा हम एक बार रिवाइज करते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या किया था. We have started from the process of recombinant DNA technology, जिसमें हमने सबसे पहला स्टेप कर चुके हैं, that is isolation of genetic material DNA. आप DNA को isolate करोगे. Why the fourth is wrong? Any fragment of the DNA carrying desirable gene. तो यहाँ पे सिर्फ प्लाज्मिड के कैरेक्टर की बात की जा रही है ना. तो प्रिया अगर हम मोस्ट अप्रोप्रिएटली देखेंगे तो दैट इज इट इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डीएनए. चलिए, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए हमने पढ़ा था कि हम डीएनए को किस तरीके से आइसोलेट करते हैं. सेल को ब्रेक किया जाता है. हमने पढ़ा था बैक्टीरिया को ब्रेक करने के लिए लाइसोजाइम, फंजाई को ब्रेक करने के लिए काइटिनेज, एंड वन प्लांट सेल को ब्रेक करने के लिए दैट इज सेलुलेज. फिर हमने देखा था कि डीएनए ऑब्टेन्ड हुआ था, आरएनए ऑब्टेन्ड हुआ था, एंड दैट ऑफ हिस्टोन प्रोटीन. आरएनए को आपने क्लीव किया था कैसे? विद द हेल्प ऑफ आरएनएज एंजाइम. हिस्टोन प्रोटीन को आपने क्लीव किया था विद द हेल्प ऑफ प्रोटीएज एंजाइम. लेकिन अगर मुझे फ्रेश डीएनए को आइसोलेट करना है तो मैं क्या ऐड करती थी? चिल्ड इथेनॉल ऐड कर रही थी, दैट रिजल्टिंग इन द प्रेसिपिटेशन आउट. फिर आप उसे बाहर निकाल लोगे एंड दैट इज कॉल्ड एज पूलिंग. सो दिस इज अबाउट द आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो हम कर चुके हैं.
फिर हमने पढ़ा था कि हमने डीएनए जो ऑब्टेन्ड किया है उसे आप कट करोगे एट दैट ऑफ अ स्पेसिफिक लोकेशन विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एज अ रिजल्ट जो भी फ्रैगमेंट्स हमें मिलेंगे आप उसे सेपरेट करोगे अकॉर्डिंग टू दैट ऑफ साइज, चार्ज या बोथ। किसके बिहाफ पे? on the basis of that of a size. So separation and isolation of desired DNA fragment by the process of agarose gel electrophoresis, जिसमें आपको याद है हमने पढ़ा था एक डाई दैट इज यूज्ड टू विजुअलाइज डीएनए फ्रैगमेंट। कौन सी डाई यूज कर रहे थे? दैट इज ETBr, इथीडियम ब्रोमाइड, दैट रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑरेंज कलर के बैंड्स मिल रहे थे। फिर आप जो भी डिजायर डीएनए का फ्रैगमेंट है आपने उसे ऑब्टेन्ड किया था। कैसे? बाय कटिंग आउट दैट एग्रोस जेल पार्ट, और आप उस प्रोसेस को क्या कह रहे थे? दैट इज कॉल्ड एज इल्यूशन। एब्सोल्युटली करेक्ट। ब्रोमोफिनॉल ब्लू, इट इज फंक्शन टू बी एज अ ट्रैकिंग डाई। एब्सोल्युटली करेक्ट। अब जो भी आपको डीएनए का फ्रैगमेंट मिला था हमने उसे एम्पलीफाई किया था, and the amplification of gene of interest that is using PCR, that is a polymerase chain reaction. बेटा अभी जो हमारे पास डिजायर डीएनए फ्रैगमेंट मिल गया पीसीआर के थ्रू, अब आप उसे लाइगेट करोगे ना ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट इनटू दैट ऑफ अ वेक्टर। सो फ्रॉम द टुडेज क्लास वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस स्टेप, दैट इज द फिफ्थ स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। शुरू करें। Yes. So our fifth step is, wait for a second. Okay. So our fifth step is, मैम का नाम लो। So next is insertion of ligation of or insertion of DNA fragment into the vector. We have to start from this insertion of DNA fragment. वैष्णवी आप ये क्यों पूछ रहे हो? आप लास्ट क्लास में नहीं थे? Insertion of DNA fragment into suitable vector ओके वैष्णवी अभी ठीक हो आप? आई वेरी बैड। दैट इज अ लाइगेशन ऑफ अ डीएनए फ्रैगमेंट इनटू दैट ऑफ अ सुटेबल वेक्टर। आप जानते हो ना बेटा जीन ऑफ इंटरेस्ट, क्या हो गया? बेटा आपने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऑब्टेन्ड किया है फ्रॉम PCR, नाउ इट इज लाइगेटेड विद दैट ऑफ अ वेक्टर। आप उसको वेक्टर के साथ लाइगेट करोगे। पहले आप जानते हो कि वेक्टर को भी कट किया जाएगा विद दैट ऑफ अ सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। हमने पढ़ा था ना कि वेक्टर इट इज आल्सो कट विद दैट ऑफ अ सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिससे हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऑब्टेन्ड किया है। एज अ रिजल्ट क्या, क्यों हमने सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करवाया था? बताओ। जीन ऑफ इंटरेस्ट दैट इज टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फॉरेन डीएनए, जिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने उसे वहां पर कट किया था उसी से हम लोग वेक्टर डीएनए को भी कट करेंगे ताकि स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो जाए ही, ताकि आप उसे ज्वाइन कर सको विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। सो वेक्टर इट इज आल्सो कट विद दैट ऑफ अ सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम so as to produce sticky ends. बेटा सेल्फ लाइगेशन को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा एंजाइम की रिक्वायरमेंट है? वी हैव स्टडीड सेल्फ लाइगेशन ऑफ द वेक्टर, दैट इज अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अल्कलाइन फॉस्फेटेज रिमूव क्या करता है? अल्कलाइन फॉस्फेट इट अलाउज अ रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप so as to prevent self ligation, ताकि सेल्फ लाइगेशन से प्रिवेंट कर सकें। Now the desired gene of interest
and the vector DNA, they both are ligated. They both are ligated, resulting in the formation of recombinant DNA. And it is ligated with the help of an enzyme. Anyone in this class? बताओ ये दोनों आपस में किस एंजाइम के थ्रू आप उसे लाइगेट कराओगे? जीन ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज DNA ligase. Is it clear to everyone that how the insertion of DNA fragment into the suitable vector occurs? Yes. After that बेटा इंसर्शन होने के, लाइगेशन होने के DNA फ्रैगमेंट का वेक्टर के अंदर, now there is a need for the transformation, transferring the recombinant DNA into the host. जैसे जो हमने क्लास शुरू की थी तब आप मुझसे पूछते थे ना कि मैम ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर किस तरीके से होस्ट ऑर्गेनिज्म में कैरी करके लेके जाएगा, या फिर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर किस तरीके से कैरी करेंगे. तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि दैट हाउ द ट्रांसफरिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू दैट ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म. सो इज इट कंप्लीटेड? यहां तक हो गया आपका? यस, ओके. बेटा मुझे बताना डीएनए पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है? नेगेटिवली चार्ज है. बेटा phosphatase, it is responsible for the removal of phosphate group from that of a nucleotide itself. Yes बेटा. बेटा जैसे अगर हम डीएनए का फ्रैगमेंट करते हैं तो उसमें एक 3' एंड भी होगा और एक 5' एंड भी होगा ना. एक न्यूक्लियोटाइड का मतलब नहीं होता, फ्रैगमेंट के एंड की बात की जाती है. जैसे आप डीएनए के फ्रैगमेंट्स पढ़ते हो, 5' एंड इट कंटेन फॉस्फेट ग्रुप, 3' एंड इट कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप. सो 5' एंड से फॉस्फेट ग्रुप वाले पार्ट को हटा दिया जाता है ताकि वो सेल्फ लाइगेट ना हो. ओके, होता तो वो भी न्यूक्लियोटाइड का ही पार्ट है. सो नाउ द नेक्स्ट थिंग, आप जानते हैं डीएनए इट इज अ नेगेटिवली चार्ज. इट इज अ वाटर सॉल्युबल और इट इज अ वाटर इनसॉल्युबल. इट इज अ वाटर सॉल्युबल और इट इज अ वाटर इनसॉल्युबल. बेटा इट इज अ वाटर सॉल्युबल ना. आप जानते हो जो भी पोलर ग्रुप्स होते हैं, दे हैव अ एबिलिटी टू इंटरैक्ट विद वाटर, सो दे हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ नेगेटिव चार्ज, सो इट इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल. आपको यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है, दैट इज सेल. सेल जानते हो ना? Cell is a basic structural and functional unit of life. Are all living organism. सबसे छोटा यूनिट कौन सा होता है? That is a cell. Cell it contain nucleus. That is a control center of the cell. And this nucleus it contain a negatively charged molecule that is called as DNA. अब आप मुझे बताओ कि अगर मुझे एक डीएनए को क्रॉस कराना हो वन सेल के अंदर, तो क्या मैं डीएनए को आसानी से क्रॉस करा सकती हूँ? आंसर है नो. Because our cell, it is made up of cell membrane that is also called as plasma membrane. Plasma membrane, it is made up of, anyone in this class remember the class 11? Plasma membrane किससे मिलकर बनी है? Mainly it is made up of phospholipid bilayer that only allows lipid soluble molecules to pass easily, but not water soluble. Water soluble के लिए हम लोग प्रोटीन के चैनल्स के थ्रू क्रॉस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें, सो सिंस डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, हाइड्रोफिलिक you know that they are water loving, so that they cannot pass easily through cell membrane. मुदित हम ये पढ़ रहे हैं ना कि किस तरीके से हम इंट्रोडक्शन करेंगे. आवर नेक्स्ट स्टेप दैट इज अ ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट. और अगर आप हेडिंग वैसे लिखना चाहते हो सिर्फ, सो दैट इज कॉम्पिटेंट सेल्स किस तरीके से फॉर्म किए जाते हैं. सो वन थिंग मोर, कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्पिटेंट आपके अकॉर्डिंग का क्या मतलब होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटेंट? सुटेबल. एब्सोल्युटली करेक्ट. मतलब हमें उस सेल को काबिल बनाना होगा
ताकि वो फॉरेन डीएनए को इनटेक कर सके, ले सके, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्पिटेंट। आपको ये समझ में आ गया कि डीएनए नॉर्मली नेगेटिवली चार्ज है, दे आर नॉट इजिली क्रॉसेस द मेम्ब्रेन, तो हमें उसे कंपैटिबल बनाना होगा उस सेल को ताकि वो उस डीएनए को टेकअप कर सके। सो दैट इज कॉल्ड एज कॉम्पिटेंट सेल्स। कैपेबल बनाना होगा, एब्सोल्युटली करेक्ट निधि। सो इन ऑर्डर टू take up the DNA, the bacteria or the host cell first made competent. बेटा क्योंकि सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बायलेयर से मिलकर बनी होती है ना। सो फॉस्फोलिपिड की बायलेयर में वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल इजीली कैसे क्रॉस करेंगे प्रिया, नहीं कर पाएंगे ना। So that is why in order to take up the DNA, the host cell first made competent. Competent means ability to take up the foreign DNA. बेटा अभी हम ये पढ़ेंगे कि दैट व्हाट आर द वेज टू मेक अ कॉम्पिटेंट सेल ऑफ अ होस्ट ऑर्गेनिज्म. सो आवर नेक्स्ट इज वेज टू मेक कॉम्पिटेंट सेल, जिसके अंदर हमारा सबसे पहला मेथड है दैट इज CaCl2 मेथड. चलिए आप फर्स्ट डायग्राम देखिए. इन द फर्स्ट डायग्राम व्हाट विल हैपन इन द CaCl2 मेथड. आप यहाँ पे जानते हो ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर का डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है. नॉर्मली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट कैरी आउटसाइड देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, इनसाइड नेगेटिव चार्ज. अगर आपको क्लास 11th याद हो तो आपको पता होगा मेम्ब्रेन की पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है. दैट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, दैट इज -50 to -70 मिलीवोल्ट. याद है क्या भूल गए कि नॉर्मल एक मेम्ब्रेन का पोटेंशियल भी होता है. अगर आप इस सेल को ट्रीट करोगे विद दैट ऑफ CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड ट्रीटमेंट, डाइवेलेंट कैल्शियम आयन है ना, डाइवेलेंट मींस दैट कंटेन 2+ चार्ज ऑन द कैल्शियम आयन. तो आप मुझे बताओ जो उसके ऊपर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ ट्रीटमेंट विद दैट ऑफ CaCl2 आयन. नो आही नो. -90 मिलीवोल्ट इज नॉट एन एक्टिव पोटेंशियल. +0 से +30 मिलीवोल्ट, प्लस साइन इट इंडिकेट्स फॉर दैट ऑफ एक्शन पोटेंशियल, नॉट दैट ऑफ माइनस. -90 मिलीवोल्ट कुछ और था, दैट इज हाइपर पोलराइजेशन. यू आर रॉन्ग. -50 to -70 दैट इज रेस्टिंग हाइपर. यस. चलिए बेटा अगर हमारी बात समझते हैं. अभी बैक्टीरिया के अंदर जो भी उसकी सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर एक अपना डिस्ट्रीब्यूशन है. अगर मैं CaCl2 के साथ ट्रीटमेंट करूंगी तो यहाँ से अब किसी भी फॉरेन डीएनए की परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की उसकी वॉल की डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर दिया है. यस और नो. इसके बाद CaCl2 के ट्रीटमेंट करने के बाद अब आप उस सेल को ट्रीट करोगे कोल्ड टेम्परेचर पे, ताकि आपने जो भी चेंजेस लेकर आए हो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर वो स्टेबलाइज हो जाए. लेटर ऑन आप उसे हीट शॉक ट्रीटमेंट दोगे एट दैट ऑफ 42 डिग्री सेल्सियस. आप यहाँ पे देख रहे हो कि प्लाज्मिड बाउंड हो चुका है सेल के एक्सटीरियर पे. अगर हम उसे हीट शॉक ट्रीटमेंट देंगे तो छोटे छोटे पोर्स बन जाएंगे, बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी आ जाएगी. एज अ रिजल्ट अब बैक्टीरिया को टाइम मिलेगा कि वो फॉरेन डीएनए को टेकअप कर ले. तो अभी आपने देखा फॉरेन डीएनए को टेकअप कर लिया गया. अब उसे स्टेबलाइज करने के लिए फिर से आप उसे किस पे रख दोगे, कोल्ड टेम्परेचर पे रख दोगे. So this is how by the chemical method, that is by CaCl2 method, a plasmid DNA it is introduced into the host organism, and this process it is called as transformation. आप जानते हो ना ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कि क्लोनिंग वेक्टर का इंट्रोड्यूस करना होस्ट सेल के अंदर, that is called as transformation. Is it clear to everyone? First method CaCl2. Yes. तो हम अब सबसे पहले फर्स्ट मेथड को समझेंगे, that is CaCl2 method. पहले सबसे पहले किसके साथ ट्रीट किया था, कैल्शियम क्लोराइड के साथ.
So in this first cell treat with CaCl2, that is calcium chloride. बाकी हम बेटा क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटेंट सेल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं. देखो मैंने लिखा है व्हाट आर द वेज टू मेक कॉम्पिटेंट सेल. तो सबसे पहला तरीका देखा हमने किस तरीके से एबिलिटी को इंक्रीज किया बैक्टीरिया सेल के. सो दैट इज CaCl2 मेथड. इन दिस द फर्स्ट सेल इट इज ट्रीटेड विद CaCl2. इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी, जिससे क्या हुआ, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी. इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी to take up foreign DNA by alter its permeability, उसकी permeability को change करके. इसके बाद किसके साथ क्या करना था, CaCl2 ट्रीटमेंट दिया, परमेबिलिटी को ऑल्टर किया. अब आपको उसको स्टेबलाइज करना होगा ना, तो कोल्ड टेम्परेचर पे रखोगे. प्लेस इट एट कोल्ड टेम्परेचर. फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, कोल्ड टेम्परेचर प्रोवाइड करने के बाद देन इट्स अ हीट शॉक ट्रीटमेंट. बहुत इंपॉर्टेंट है हीट शॉक ट्रीटमेंट का टेम्परेचर भी याद रखना, दैट इज एट 42 डिग्री सेल्सियस. देन प्रोवाइड heat shock treatment at 42 degree Celsius. That create pores, जिससे छोटे छोटे pores create हो जाएंगे. putting back into the ice. आप दोबारा से उसको आइस के अंदर रखोगे. And now the आप दोबारा से उसको आइस के अंदर, so this is a method of CaCl2 method. It's okay. Amit, wait for a second. See in the diagram. बेटा हीट शॉक ट्रीटमेंट देने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हो कि प्लाज्मिड इट इज एंटर्स इनटू द होस्ट सेल. एज अ रिजल्ट नाउ द सेल इट इज ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब समझते हो आप, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म. बेटा कैल्शियम क्लोराइड इट इज अ डाइवेलेंट कैल्शियम आयन ना, चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, Ca2+ होता है, जिसके अंदर भी चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन आप चेंज करोगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी भी तो चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप उसके इलेक्ट्रॉन के चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर रहे हो प्रिया. It is mainly for that of a bacteria. Yes मोदित. तभी हम लोग यहाँ पे वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं. आप जानते हो ना ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ वन बैक्टीरियल डीएनए इनटू द अनदर बैक्टीरियल डीएनए इनटू द अनदर बैक्टीरियल होस्ट. आउटसाइड एंड इनसाइड बोथ आर चेंजेस ना, हम लोग ओवरऑल की बात करते हैं प्रिया. हाँ जी, अगेन कूल फॉर दैट ऑफ अ स्टेबिलिटी. Now the next method, it is for the micro injection. So this is first, it is about the calcium chloride method. अब इसके बाद नेक्स्ट देखोगे आप माइक्रो इंजेक्शन. बेटा माइक्रो इंजेक्शन मैं आपको पहले एक चीज बताती हूँ. देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ सेल, और आप जानते हो सेल के अंदर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एन ऑर्गेनेली दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस. अगर आप न्यूक्लियस के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट करो डीएनए को, फॉरेन डीएनए को आप डायरेक्टली इंजेक्ट करो विद द हेल्प ऑफ अ पिपेट, माइक्रो पिपेट, तो आप उसे क्या कह रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो इंजेक्शन. अब आप मुझे अपने थोड़ी सी बेसिक नॉलेज से बताओ कि ये माइक्रो इंजेक्शन किस में यूज किया जाता होगा, एनिमल सेल के अंदर या प्लांट सेल के अंदर? गलत है मुझे, एनिमल सेल के अंदर ना. प्लांट सेल दे हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ सेल वॉल. क्या सेल वॉल के अंदर हम इंजेक्शन के थ्रू कर पाएंगे? नो. बट द एनिमल सेल्स के अंदर तो सेल वॉल नहीं है, तो हम डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं. अगर हम न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करें अंडर टू दैट ऑफ अ माइक्रोस्कोप, सो इट इज मेनली फाउंड इन द एनिमल सेल. ये एनिमल सेल के अंदर देखा जाता है. सो माइक्रो इंजेक्शन इट इज मेनली फाउंड इन एनिमल सेल. In this
DNA is directly injected into the nucleus of animal cell. यस आही. अच्छा, आप एनिमल सेल के लिए पूछ रहे हो? एनिमल सेल के लिए आही? नो बेटा, बहुत छोटी सी माइक्रोपिपेट होती है. आप यहाँ पे देखो डायग्राम के अंदर, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल पिपेट लाइक अ स्ट्रक्चर. इंजेक्शन होता है जिसके अंदर आप डायरेक्टली इंजेक्ट कर रहे हो डीएनए को इनटू दैट ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल. रप्चरिंग नहीं होती, छोटा सा पोर क्रिएट होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद से दोबारा से स्टेबलाइज भी कर सकता है. क्लियर? नेक्स्ट मेथड, इट इज बॉयलिस्टिक और अ जीन गन मेथड. डू इट फास्ट महक. Done, Mehak? Okay. Now the third one, it is boilistic और gene gun method. बेटा पहले एक बार हम डायग्राम देखते हैं बॉयलिस्टिक और जीन गन मेथड का. अच्छा, फिजिक्स अच्छी लगती है? फिजिक्स अच्छी लगती है? यस. प्रोजेक्टाइल पढ़ा है उसमें? प्रोजेक्टाइल पढ़ा होगा. गन के बारे में सुना है? बुलेट के बारे में सुना है? बुलेट के बारे में क्या सुना है कि उसके ऊपर एक बहुत बड़ी कवरिंग होती है जो मेन बुलेट का जो पार्ट होता है जो हमारी बॉडी के अंदर जाके इंसर्ट करते हैं, वो तो बहुत छोटा सा होता है ना, वो तो बहुत छोटा सा होता है. इट इज कोटेड विद दैट ऑफ अ हेवी मेटल कि ताकि हम उसे बहुत दूर से अगर फेंकें तो सिर्फ उसका जो स्मॉल पार्टिकल है जब वो हमारे साथ बम्बार्ड करे तो सिर्फ स्मॉल पार्टिकल एंटर कर जाए, बाकी का सारा पार्टिकल नीचे ही रह जाता है. आपने देखा भी होगा मूवीज के अंदर that there is a very small pointed part that is inserted into the body or anything, any object, but the large particle it get removed out. So the same concept that is to be used in this boilistic shell out. हाँ, shell जो होती है वो remove हो जाती है. इसके अंदर भी वही सेम मेथड है जिसे हम कहते हैं बॉयलिस्टिक और जीन गन मेथड. आप यहाँ पे देख रहे होगे कि देयर इज अ फायरिंग पिन, देयर इज अ चार्ज एंड देयर इज अ माइक्रो पार्टिकल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ माइक्रो पार्टिकल हियर? अगर आपने डीएनए को कोट किया है विद दैट ऑफ अ हेवी पार्टिकल लाइक अ गोल्ड और टंगस्टन, आपने उसके साथ उसे कोट किया, फिर आपने इसको प्रेस किया. ये जो हमारे पास पिस्टन है, दिस पिस्टन इट गेट प्रेस्ड, एज अ रिजल्ट ये भी प्रेस्ड हुआ एंड एज अ रिजल्ट माइक्रो पार्टिकल्स आगे की तरफ मूव करे. तो जब माइक्रो पार्टिकल्स आगे की तरफ मूव करे तो वो हिट किया. हिट करने के बाद गोल्डन टंगस्टन पार्टिकल्स, दीज आर द हेवी मेटल दैट इज कोटेड विद दैट ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल. डीएनए मॉलिक्यूल के चारों तरफ गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल की कोट की जाती है मुदित. एज अ रिजल्ट जब गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल सेल के नजदीक आते हैं तो गोल्ड और टंगस्टन तो बाहर ही रह जाता है, बट बिकॉज ऑफ अ हाई वेलोसिटी जो हमारा डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, वो इंट्रोड्यूस हो जाता है इनटू दैट ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म. प्रिया, आप एक बार दोबारा से देखो दिस फर्स्ट डायग्राम एंड दिस सेकेंड डायग्राम. ओके 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 ओके, मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ. आप फर्स्ट डायग्राम और सेकेंड डायग्राम को एक बार खुद से ऑब्जर्व करके देखोगे. क्या यहाँ पे आपको टारगेट सेल में कोई भी सेल के पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं? फर्स्ट वाले में टारगेट सेल के ऊपर नो, लेकिन आपको सेकेंड वाले के अंदर सेल्स के ऊपर माइक्रो पार्टिकल्स दिखाई दे रहे होंगे. वो एक्चुअल में हुआ क्या? आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पर माइक्रो पार्टिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट है एंड लेटर ऑन ये जो पिस्टन है वो यहाँ तक पहुंच चुका है and now the microparticle it is gathered on the surface of target cell. So what is the main result of this thing? अगर आप एक gene gun method, this is called a gene gun method, बेटा सामिका, it's a method जो कि done किया जाता है with that of a technician, technically use किया जाता है with the help of various instruments. हम लोगों को वो नहीं करना. डीएनए को हम कोट करते हैं विद दैट ऑफ अ गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल, फिर हमने पिस्टन से मूव किया. एज अ रिजल्ट गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल्स हमारे टारगेट सेल के ऊपर आए. सिंस गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल का जो मटेरियल है वो बहुत ही ज्यादा हैवी है, लाइक दैट ऑफ अ बुलेट शेल, तो बुलेट की शेल वहीं रह जाती है लेकिन जो उसके अंदर का पार्ट होता है वो हमारी बॉडी में इंसर्ट कर जाता है. इसी तरीके से गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल बाहर ही रह गया, सेल के बाहर रह गया, बट नाउ द डीएनए इट इज इंसर्टेड इनटू आवर बॉडी. सो दिस इज कॉल्ड एज बॉयलिस्टिक और अ जीन गन मेथड. टारगेट सेल मेड अप ऑफ व्हिच टाइप ऑफ अ थिंग? आमिर, आप मुझे बताओ
कि ये टारगेट सेल किस चीज से बना होना चाहिए, एनिमल सेल का होना चाहिए या प्लांट सेल का होना चाहिए? ऑफ कोर्स प्लांट सेल का होना चाहिए, जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट हो. वी आर नॉट एबल टू डायरेक्टली इंजेक्ट द डीएनए इन द प्लांट सेल विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इंजेक्शन. तो हमें सेल वॉल चाहिए. उस सेल वॉल को रप्चर करने के लिए मुझे हाई स्पीड चाहिए, एंड दैट हाई स्पीड इट इज प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ बॉयलिस्टिक और अ जीन गन मेथड. क्लियर? बाकी एनिमल सेल के लिए हम माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक को यूज कर रहे हैं. प्लांट सेल के लिए हम लोग बॉयलिस्टिक और जीन गन मेथड को यूज कर रहे हैं. फर्स्ट इट इज ओनली अ डिपिक्टिंग ऑफ डायग्राम. प्रिया, ये सिर्फ डायग्राम दिखा रहा है जीन गन का. सेकेंड वाले के अंदर उसे पुश करके दिखाया जा रहा है. क्लियर टू एवरीवन? नाउ द नेक्स्ट इज अ बॉयलिस्टिक और अ जीन गन मेथड. Ballistic or gene gun method, it is used for plants. Cells are bombarded with can't we use मैम प्लांट सेल में सेलुलेज यूज करके? नहीं पाखी, आप मुझे एक बात समझना. पाखी, हम लोग सेलुलेज एंजाइम इसलिए यूज करते हैं ताकि मैं डीएनए को आइसोलेट कर सकूं. मैं सेलुलेज एंजाइम इसलिए यूज नहीं करूंगी ताकि मैं फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर सकूं, क्योंकि एक बार सेल वॉल रप्चर हो गई तो आपके पास ये एबिलिटी है दोबारा से सेल वॉल बनाने की. हम होस्ट ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम लोगों को इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए की बात नहीं कर रहे हैं. क्लियर है? सो दैट इज अ सेल दैट इज यूज्ड फॉर द प्लांट्स, बॉयलिस्टिक और अ जीन गन मेथड. सेल्स आर bombarded with high velocity microparticle of gold or tungsten coated with DNA. It is also called as gene gun. Clear to everyone? Clear? Yes or no? Yes. इसके अलावा आप जानते हो ना कि किसी भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करने का काम डिसार्म्ड पैथोजन भी करते हैं. यू रिमेम्बर डिसार्म्ड पैथोजन? एग्जाम्पल बताओ डिसार्म्ड पैथोजन के. हमने कौन कौन से डिसार्म्ड पैथोजन पढ़े थे? दैट इज टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ना. सो डिसार्म्ड पैथोजन दैट इज टीआई प्लाज्मिड ऑफ agrobacterium that is used in plant cell or animal cell? Plant cell. And the another animal cell के लिए क्या यूज करते थे disarmed pathogen की तरह? That is a retrovirus. Retrovirus it is function to be as a disarmed pathogen in the case of animal cell. How the DNA coated with a are very heavy. Yes प्रिया, ये बहुत ज्यादा हेवी होते हैं. आपको रदरफोर्ड मॉडल याद है केमिस्ट्री का? उसके अंदर भी तो एटम्स के अंदर पास करने के लिए अगर मुझे रेडिएशंस निकालनी थी तो वो किस में से निकाल रहे थे? फ्रॉम दैट ऑफ अ हेवी मेटल ना, दैट इज अ गोल्ड और द टंगस्टन पार्टिकल. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बुलेट का भी दिया, दैट देयर इज एन आउटर कवरिंग ऑफ अ शेल, गोल्ड फॉइल का यूज किया गया था. एब्सोल्युटली करेक्ट. सो दीज आर दी हेवी मेटल्स जो कि आप यूज करते हो एज एन आउटर कोटिंग ताकि वो डिसइंटीग्रेट ना हो. डीएनए पे गोल्ड कैसे कोट हो सकता है? डीएनए पे गोल्ड कैसे कोट हो सकता है बेटा? प्रिया, इसके लिए हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं. सो दिस इज बियॉन्ड योर चैप्टर. ये आप लोग आगे अपने हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि गोल्ड की कोटिंग कैसे की जा सकती है डीएनए के पार्टिकल के ऊपर. देयर आर सो मेनी टेक्निक्स आर देयर इन द बायोटेक्नोलॉजी. ओके, सो डिसार्म्ड पैथोजन that is a TI plasmid of agrobacterium that is used in the plant cell. Retroviruses used in the animal cell. बेटा गोल्ड डीएनए के ऊपर कोटिंग हो रही है ना गोल्ड की मुद्दत. नाउ द नेक्स्ट इज अबाउट द इलेक्ट्रोपोरेशन. एज अ नेम सजेस्ट, इलेक्ट्रोपोरेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो हियर रेफर्स टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पोरेशन रेफर्स टू दैट ऑफ अ पोर by in the presence of electric field.
अगर हम लोग अपने सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स को क्रिएट कर दें, एज अ रिजल्ट डीएनए का टेकअप किया जाए, सो दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपोरेशन. Yes, Samita. So electroporation in this short electric field that create pores and allow to take up foreign DNA. So that is called as electroporation. Is it clear to everyone? Clear है सभी को electroporation तक? Yes? Okay. अभी पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, अगर हम स्कूल के पेपर के बारे में बात करें, बोर्ड्स के लिए भी बात करें. जीन गन का सेकेंड पॉइंट, जीन गन का सेकेंड पॉइंट, दिस वन. गुंजन, बेटा सेल्स आर बॉम्बार्डेड विद द हाई वेलोसिटी. अभी हमने देखा था ना कि हमारे पास यहाँ पर टारगेट सेल प्रेजेंट है. हियर देयर इज अ टारगेट सेल. दिस टारगेट सेल हियर रेफर्स टू दैट ऑफ अ सेल. सो सेल्स आर बॉम्बार्डेड विद, बॉम्बार्डेड का मतलब होता है टकराना. हमने बॉम्बार्ड किया विद दैट ऑफ अ मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल, जिसके अंदर कोटिंग किसकी है, गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल के. सो सेल्स आर बॉम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रोपोरेशन इन प्लांट्स. यस रिमझिम, पोरेशन किसी में भी कर सकते हो, प्लांट सेल में भी कर सकते हो, एनिमल सेल में भी कर सकते हो. दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड. रिमझिम, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी चार्जेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना प्रिया. इलेक्ट्रिसिटी इट ऑल्सो कंटेन चार्जेस. So cells are bombarded with that of a high velocity microparticle of gold or tungsten coated with that of a DNA. DNA के साथ coated है gold of tungsten particle. High velocity के साथ आए, target cell के साथ टकराए, भारी चीज वही रह गई, heavy particle बाहर ही रह गया, और जो हमारा DNA है वो introduce हो गया into that of target cell. Clear? बेटा इलेक्ट्रिसिटी अगर आप सप्लाई करोगे तो सेल के अंदर रप्चरिंग नहीं आएगी प्रिया, बिकॉज ऑफ अ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस. सो इट क्रिएट फोर्स. सो अभी आप यहाँ पे देख रहे थे कि हमने बहुत सारे वेज पढ़ लिए हैं जिसके थ्रू आप अपने फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस कर सकते हो. अब आप मुझे बताओ, ये जो CaCl2 मेथड है, इसमें आपने जो डीएनए को इंट्रोड्यूस किया, इट इज बेस्ड अपॉन द वेक्टर. क्या वेक्टर के थ्रू आपने इसके अंदर इंट्रोडक्शन किया या डायरेक्ट किया? डायरेक्ट इंट्रोडक्शन किया. सो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज वेक्टरलेस मेथड. तो आपके बोर्ड्स के पेपर में अगर आपको लिखने के लिए आएंगे तो आपसे पूछ सकते हैं कि दैट हाउ व्हाट आर द वेक्टरलेस मेथड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट सेल. टू वेज in which the question may be asked, that what are the vectorless method in which there is an introduction of recombinant DNA into the host cell, number one. Number two, what are the different ways in which the competent cells are formed. कॉम्पिटेंट सेल्स आया तो आप डायरेक्ट समझ जाओगे, और अगर वैसे पूछा जाए तो आपको वेक्टरलेस मेथड से बताना है. आया था ये? ओके. आज था माइक्रो इंजेक्शन, इट इज ऑल्सो वेक्टरलेस. यहाँ पे भी आपने वेक्टरलेस मेथड से डीएनए को इंट्रोड्यूस किया है इनटू दैट ऑफ होस्ट सेल. बट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इक्वल्स टू वेक्टर प्लस डीएनए इंसर्ट. यस बेटा, वेक्टर प्लस डीएनए इंसर्ट, लेकिन कई बार हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट को डायरेक्टली भी इंसर्ट कर सकते हैं. सो ये वो सारे के सारे मेथड हैं जिसके आप बिना वेक्टर के थ्रू भी आप इंसर्ट कर सकते हो. वेक्टर का मतलब तो सिर्फ कैरी करके लेके जाना होता है ना. सो हम वही सारे मेथड पढ़ रहे हैं इन विच वेक्टर इज नॉट यूज एंड डायरेक्टली जीन ऑफ इंटरेस्ट इज यूटिलाइज्ड. यही दोनों लिखा था ना मैं? गुड गुड. लेकिन दोनों नहीं लिखना था, इससे ज्यादा भी लिख सकते थे. ये भी वेक्टरलेस मेथड है बच्चे. लेकिन अगर हम डिसआर्म्ड पैथोजन की बात करें, सो दिस इज अ वेक्टर बेस्ड मेथड. ये वेक्टर बेस्ड मेथड है. इलेक्ट्रोपोरेशन के बारे में बात करें, सो दिस इज आल्सो वेक्टरलेस मेथड. तो अगर आपके स्कूल के पेपर में या बोर्ड के पेपर में अगर वेक्टरलेस मेथड पूछा जाए तो आप ये सारे के सारे मेथड्स लिख सकते हो इनटू दैट ऑफ वेक्टरलेस. 2 मार्क्स का ही था, कोई बात नहीं. ठीक है, क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? माइक्रो इंजेक्शन इज ऑल्सो वेक्टरलेस. डायरेक्टली इंजेक्ट किया जा रहा है डायरेक्टली डीएनए को इनटू दैट ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल. क्लियर? ओके बेटा, इसके बाद आपने यहाँ पे देखा कि हमने लाइगेशन भी कर लिया है.
अटैच एट द सरफेस फर्स्ट। बेटा CaCl2 मेथड के अंदर आपने ये जो कहा ना, यहाँ पे जो ये प्लाज्मिड डायरेक्टली अटैच किया जा रहा है, तो हम यहाँ पे प्लाज्मिड एज अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए CaCl2 मेथड को आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। आप डायरेक्टली भी इंसर्ट करा सकते हो और विद द हेल्प ऑफ वेक्टर भी यूज कर सकते हो। ओके, इसमें ऐसा कोई वो हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। नाउ द नेक्स्ट फॉर यू ऑल, ligation of DNA fragment into that of a vector। वैसे लेकिन हम CaCl2 मेथड या कॉम्पिटेंट होस्ट, जो भी आपके कॉम्पिटेंट होस्ट है ना सारे के सारे, वो हम अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक भी देखोगे तो यहाँ पे तो ये वर्ड लिखा है ना प्लाज्मिड, इट इज बाउंड टू द सेल एक्सटीरियर। एक्चुअल में होता है यहाँ पे सेल, डीएनए कंटेनिंग मटेरियल, डीएनए कंटेनिंग मटेरियल को आप अटैच करवाते हो टू दैट ऑफ अ सेल एक्सटीरियर, नॉट एग्जैक्टली द प्लाज्मिड दैट इज टू बी अटैच। अगर अपूर्वा आप अपनी बुक की को भी देखोगे, एनसीईआरटी की बुक को भी, तो उसमें लिखा हुआ है कि कॉम्पिटेंट सेल के अंदर CaCl2 मेथड है, एंड द कॉम्पिटेंट सेल इट ऑल इंक्लूड्स ऑल द मेथड दैट आर वेक्टरलेस। ठीक है, जिसमें सारे वेक्टरलेस होते हैं। और आप एनसीईआरटी में भी देखना, वहां पे सिर्फ डीएनए मटेरियल लिखा होगा, नॉट दैट ऑफ अ प्लाज्मिड। नाउ द नेक्स्ट फॉर यू ऑल, आप जानते हो लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट इनटू वेक्टर हम कर चुके हैं। नाउ द ट्रांसफरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट भी कर लिया। Now there is a culturing, CaCl2 is a vectorless, basically it is a vectorless, लेकिन आप प्लाज्मिड के थ्रू भी अटैच करवा सकते हो प्रिया, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि आप डायरेक्टली डीएनए को भी इंसर्ट करवा सकते हो बाय द ट्रीटिंग द CaCl2 और बाय द यूज ऑफ वेक्टर आल्सो। ओके, इज इट स्टक? Now the culturing the host cell in the nutrient medium at a large scale। बेटा अभी तक तो हमने डीएनए को इंट्रोड्यूस किया है ना बेटा CaCl2 मेथड के अंदर। दिव्यांशी, सबसे पहले आपने सेल को ट्रीट किया विद दैट ऑफ CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड के ट्रीटमेंट करने से जो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी है वो चेंज हो जाएगी, सो इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी टू टेक अप द फॉरेन डीएनए बाय ऑल्टरिंग इट्स परमेबिलिटी। फिर आप उसे कोल्ड टेम्परेचर में रखोगे ताकि स्टेबिलिटी मेंटेन हो सके। देन प्रोवाइड हीट शॉक ट्रीटमेंट एट 42 डिग्री सेल्सियस ताकि पोर्स क्रिएट हो सके। फिर दोबारा से आप उसे आइस में रखोगे ताकि अब डीएनए जो है उसके अंदर स्टेबलाइज हो जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट द CaCl2 मेथड। यस दिव्यांशी। नाउ द कल्चरिंग द होस्ट सेल इन द न्यूट्रिएंट मीडियम एट अ लार्ज स्केल। आपका पूरी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर मेन पर्पस क्या है कि जो भी आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट आप डाल रहे हो, आपको जीन की जरूरत होती है या प्रोटीन की जरूरत होती है? फॉर यू व्हाट इज इट्स व्हाट्स योर यूटिलिटी, जीन और अ प्रोटीन? नो बेटा, हमारी जो यूटिलिटी होती है वो कैलकुलेट की जाती है प्रोटीन लेवल पे। आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़े हो ना, उसमें एक टॉपिक था ना रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, कि जीन होने के बाद आप उसे रेगुलेट करते हो, उसका एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, क्योंकि प्रोटीन बनेंगे तभी तो एंजाइम्स बनेंगे, तभी तो एंटीबायोटिक्स बनेंगे, तभी तो हार्मोन्स बनेंगे। सो वी आर मोर इंटरेस्टेड इन द प्रोटीन पार्ट, नॉट एट द जीन पार्ट। तो अभी तो मैंने सिर्फ रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला है, जीन डाला है, अभी मुझे उसे किस में कन्वर्ट करने की जरूरत है? प्रोटीन प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की जरूरत है। कुछ नहीं कराया प्रिया, अभी बस इतना बताया कि जो भी आपका जीन प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है, अभी आपको उसको प्रोटीन प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। सो कल्चरिंग द होस्ट सेल इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम at a large scale. So our next topic is, so before starting our next topic, there is a little bit question for you all. Which of the following is a direct method of a gene transfer? Cosmid mediated, Phagmid mediated, Priya रुको अभी, use of disarmed retrovirus or electroporation? Do it fast. Sayantika Asta, very bad. Wrong answer. Do it fast, students. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Chaitanya, 2, 1, 0. Now the poll closed. The correct answer is D. अभी तो पढ़ा था डायरेक्ट मेथड है, वेक्टरलेस मेथड है, सो दैट इज इलेक्ट्रोपोरेशन। कॉस्मिड मीडिएटेड भी वेक्टर है, फाजमिड मीडिएटेड भी वेक्टर है, डिसआर्म्ड पैथोजन भी वेक्टर मीडिएटेड है, बट द इलेक्ट्रोपोरेशन इट इज अ वेक्टरलेस।
बेटा जहां पे भी वेक्टर लेस बताया वहां पे डायरेक्ट मेथड भी हो सकता है लिखा हुआ. सो दिस इज अ डायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोपोरेशन. यस प्रिया. इलेक्ट्रोपोरेशन प्रोसीजर इन्वॉल्व fast passage of food through sieve pores in the phloem element with the help of electric stimulation, opening of stomatal pore during night and artificial light, making the transient pore in the cell membrane to introduce gene construct, purification. बहुत easy था ना, but नीट का क्वेश्चन है. Purification of saline water with the help of membrane system. कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए. So the correct answer, please give me. अरे अपूर्वा, मुदित, दिव्यांशी, नॉट एक्सपेक्टेड. मिसक्लिक. इतना फास्ट करने के लिए पाकी ने फास्टेस्ट दिया इस बार आंसर. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. यस, मुझे पता है अपूर्वा को आंसर आता है. दैट इज द थर्ड आंसर. अभी हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोपोरेशन का मेन काम क्या होता है, टेम्परेरी पोर्स को क्रिएट करना इन द सेल मेम्ब्रेन टू इंट्रोड्यूस जीन कंस्ट्रक्ट. नाउ द नेक्स्ट इज दैट इज अ बायोरिएक्टर. बेटा अभी मैं प्रिया आप जब डिस्कनेक्ट हो गए थे तो मैं आपको ये बता रही थी कि अब हमें हमारा जो मेन एम है वो क्या है, जीन से प्रोटीन प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना. आपने मुझसे पूछा प्रोटीन प्रोडक्ट में करने की क्या जरूरत है, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि दैट वी नीड जीन एक्सप्रेशन. आप जीन का क्या करोगे, आपको तो प्रोटीन चाहिए ना, दैट इज एंजाइम चाहिए आपको, हार्मोन चाहिए आपको. यही तो हमारी बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है. सो नाउ देयर इज अ नीड टू कन्वर्ट दिस रॉ मटेरियल इनटू दैट ऑफ अ प्रोडक्ट मटेरियल. अब उसको करने का काम कौन करेगा, बायोरिएक्टर. क्लियर. सो बायोरिएक्टर एक तरह का वेसल होता है. पहले हम एक बार समझ लेते हैं फिर लिखेंगे. बायोरिएक्टर कल्चरिंग, द कल्चरिंग पॉइंट. यस, कह सकते हैं बेटा कल्चरिंग पॉइंट, जहां पे हम माइक्रोबियल की ग्रोथ कराएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा जीन प्रोडक्ट क्रिएट किया जा सके. सो बायोरिएक्टर इट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ अ वेसल जिसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा माइक्रोबियल ग्रोथ कराते हो ताकि रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो सके हमारे प्रोटीन प्रोडक्ट के अंदर. सो दैट इज कॉल्ड एज बायोरिएक्टर. बेटा बायोरिएक्टर हमेशा माइक्रोब्स की ग्रोथ कराता है. आपने अपनी एनसीईआरटी की क्लासेस अटेंड की हैं, एनसीईआरटी की क्लासेस. यस, बच्चों ने एनसीईआरटी की क्लासेस अटेंड की हैं. आपने देखा होगा आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है. सो दैट इज शेक फ्लास्कर. फ्लास्क जो होता है, शेकर जो होता है, शेक फ्लास्क के बीच में और बायोरिएक्टर के बीच में क्या डिफरेंस है. हाँ जी बेटा, अगर एक शेक फ्लास्क हो तो वो भी तो हमें बार बार लगातार स्टायरिंग प्रोवाइड कर रहा है, हम उसका भी यूटिलाइजेशन करके माइक्रोबियल करा सकते हैं. बट बायोरिएक्टर एक बहुत बड़ा वेसल है दैट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन अ लार्ज स्केल. सो बायोरिएक्टर का मेन काम होता है लार्ज स्केल पर माइक्रोब्स की प्रोडक्शन करना. इसके अंदर आप कितना वॉल्यूम में कल्चर कर सकते हो, दैट इज एनीवन इन दिस क्लास. बायोरिएक्टर 1000, एब्सोल्युटली करेक्ट. बेटा बायोरिएक्टर एक तरह का वेसल है, वेसल इन विच रॉ मटेरियल of desired gene convert into end product with the help of microbial action. Absolutely correct Apurva, with the help of microbial action. प्रिया, हमें जिसके अंदर भी इंट्रोड्यूस हुआ होगा हमने उसको सेलेक्ट किया था रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट के थ्रू विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या फिर सेलेक्टेबल मार्कर के थ्रू. आपने उसको सेलेक्ट करने के बाद अब आप उसकी ग्रोथ को करना चाहोगे ना. मैंने अभी आपको बताया उसकी ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ होगी तो मल्टीप्लीकेशन ज्यादा होंगे. तो जो अगर मेरा एक माइक्रोब के अंदर भी जीन गया है तो अब वो 10 माइक्रोब्स में गया, तो एक जीन ऑफ इंटरेस्ट में मल्टीपल कॉपीज बना के इनटू दैट ऑफ होस्ट सेल अब मल्टीपल प्रोटीन्स की सिंथेसिस कर पाएंगे. So it is a vessel in which raw material, this process is done before or after, of course after Samika,
होस्ट सेल के अंदर ही तो हम कल्चरिंग कराएंगे ना, उसी को तो मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे ताकि अब मेरे पास प्रोटीन प्रोडक्ट बन सके. सो दिस इज अ स्टेप ना. इज अ वेसल इन विच द रॉ मटेरियल इट इज कन्वर्टेड इनटू एंड प्रोडक्ट with the help of microbial action. अभी आपका जो डाउट था, एंड प्रोडक्ट इज अ प्रोटीन, यस पार्किंग. बेटा अभी जो आपका डाउट है कि वो होस्ट में हो रहा है या किसके अंदर हो रहा है, तो मैं आपको उसके लिए लाइन लिखवा रही हूँ. दैट इज प्रोटीन इनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन heterologous host. heterologous host समझते हो? hetero का मतलब क्या होगा? what is the meaning of hetero? heterologous host. different, absolutely correct. hetero refers to that of a different. जैसे आप जानते हो ना, हर होस्ट ऑर्गेनिज्म का अपना भी एक डीएनए का मटेरियल होता है, लेकिन अगर मैंने उसकी बॉडी के अंदर कोई भी डीएनए डाला जो उसकी बॉडी से मैच नहीं करता, जो उसका खुद का डीएनए नहीं है, आप उसे क्या कह रहे हो? दैट इज कॉल्ड एज हेटेरोलॉगस होस्ट. हेटेरोलॉगस होस्ट मींस एक्सप्रेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट that is not belonging to the host organism, that is called as heterologous host. So protein encoding gene is expressed in heterologous host. Clear है ये second point? ताकि आपका डाउट भी क्लियर हो जाना चाहिए इस लाइन से. प्रिया, heterologous host means expression of gene. expression of gene का मतलब होता है जीन से प्रोटीन प्रोडक्ट का बनना. So expression of gene in host organism, that is called as heterologous host. अभी क्लियर है? अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो इस जीन के आगे ये भी लिख देना, expression of foreign gene in the host organism, that is called as heterologous host. जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन इंसुलिन का जीन, ह्यूमन इंसुलिन इट इज एक्सप्रेस्ड इन ई कोलाई. अगर आपने उसका प्रोटीन प्रोडक्ट कहां पे बनाया है? ई कोलाई में बनाया है. जीन से ह्यूमन इंसुलिन का जीन है, एब्सोल्युटली करेक्ट आही. दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमुलिन. रॉ मटेरियल इज अ जीन ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज अ डीएनए पार्ट. सो ह्यूमन इंसुलिन जीन दैट इज एक्सप्रेस्ड इन द ई कोलाई टू फॉर्म अ इंसुलिन हार्मोन दैट इज कंसीडर्ड टू बी एज अ ह्यूमुलिन. तो आप उसे क्या कहोगे? दैट इज कॉल्ड एज हेटेरोलॉगस होस्ट. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक क्लियर है? यस, डन. Once you complete it, please write done. Done. Beta, bioreactor, it is a chamber. Yes, Priya. Bioreactor, it is a chamber in which microorganisms are cultured in solid or liquid matter. बायोरिएक्टर एक तरह का वेसल है जिसके अंदर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाते हो, या तो सॉलिड मीडियम में या फिर लिक्विड मीडियम में. यस प्रिया, मैंने बताया अभी आपको उसी क्वेश्चन का आंसर कि डीएनए का मतलब जीन होता है. डीएनए की बेसिक यूनिट दैट इज अ जीन, डिजायर्ड जीन. सो बायोरिएक्टर इट इज अ चैम्बर इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स are cultured in a solid or liquid medium in large quantity. So that is called as bioreactor. Volume of culture can be used. अभी बताया था. Volume of culture. बेटा ह्यूमुलिन तो प्रोटीन है ना, इंसुलिन जीन है. जीन आपको ये नहीं पता चला डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन. इंसुलिन का जीन है. आपको नहीं सुना हुआ डायबिटीज वाले लोगों को इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं. अभी आप बायोटेक्नोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ोगे कि इंसुलिन हार्मोन को कंस्ट्रक्ट किया था एक एली लिली कंपनी के अंदर. उसमें जिस मार्केट में जिस नाम से उसे बेचा जाता है उसका नाम ह्यूमुलिन. सो इंसुलिन हार्मोन मार्केट में बेचा जा रहा है. तो हार्मोन तो हमारा प्रोटीन वाला पार्ट है, तो जीन को कन्वर्ट किया गया प्रोटीन के अंदर इन दैट ऑफ ई कोलाई.
इकोलाई में एक्सप्रेशन हुआ जीन का, so that is why the E. coli it is function to be as a heterologous host. So that is about 100 liter to 1000 liter. लग नहीं रहा मुस्कान. डन, इतना क्लियर है सभी को? सो बेटा अगर हम बायो रिएक्टर के बारे में बात करें, सो बायो रिएक्टर इट इज ऑफ टू टाइप्स. वन, इट इज अ सिंपल स्टायर टैंक बायो रिएक्टर. नहीं पिया, आप समझ नहीं रहे हो. ये पता चल रहा है कि जैसे अगर मुझे मार्केट में बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स मिलते हैं, दैट इज जैसे आपने हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन भी बनाई थी, तो क्या हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन मेरी बॉडी में बनाई गई थी या किसी ह्यूमन बीइंग की बॉडी में बनाई गई थी? आप किसी ना किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म को यूज करते हो ना. जैसे आपने बैक्टीरिया को यूज कर लिया, जो जनरली होस्ट आप यूज करते हो, बैक्टीरिया को यूज करते हो. हमने पढ़ा भी था कॉमनली यूज्ड होस्ट आर इकोलाई मेनली, क्योंकि इकोलाई का बैक्टीरिया का जो मल्टीप्लिकेशन रेट है वो बहुत ही ज्यादा फास्टेस्ट है, वहां पे बहुत ज्यादा जल्दी मल्टीप्लाई हो सकता है. अब आप खुद सोच के देखो कि मुझे इंसुलिन का जीन डालकर अगर मैं अपनी बॉडी में उसे एक्सप्रेस करूंगी, हार्मोन बनाऊंगी, अब फिर उसे आइसोलेट करके मार्केट में सेंड करूंगी, इट इज नॉट पॉसिबल. क्योंकि मेरी बॉडी में तो जीन एक्सप्रेशन को बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि मेरी बॉडी में मल्टीप्लिकेशन रेट बहुत स्लो है. बट इन द केस ऑफ इकोलाई मल्टीप्लिकेशन रेट इज वेरी फास्ट. जीन एक्सप्रेस हो गया प्रोटीन में, आप प्रोटीन को आइसोलेट कर लो, मार्केट में सेंड कर दो. सो दिस इज अ बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन. हमेशा कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट इसलिए इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता कि होस्ट ऑर्गेनिज्म को फायदा होगा. बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली टेक्निक है ताकि हम ह्यूमन को वेलफेयर दे सकें, इंसानों को फायदा हो सके. क्लियर हुआ प्रिया अभी? सो बायोरिएक्टर it is mainly of two type that is given in your NCERT. One, it is simple stir type bioreactor, and the another it is वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है. इन होस्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं, गलत आप कह रहे हो. वेक्टर में कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है. वेक्टर के थ्रू आप इंट्रोड्यूस करते हो होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, और फिर अब होस्ट ऑर्गेनिज्म का मशीनरी यूज करके आप उसे मल्टीप्लिकेशन करते हो. मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर मतलब हो रहा है एक बैक्टीरिया सेल से बहुत सारे बैक्टीरिया सेल्स बना देना, ताकि हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज जनरेट हो सके. नहीं बेटा, वेक्टर में तो मल्टीप्लिकेशन ओरी की वजह से जीन ऑफ इंटरेस्ट का हो रहा है ना, जो हमने पीसीआर में ऑलरेडी कर दिया है. पीसीआर में तो ऑलरेडी कर दिया था ना, कॉपीज बना दिए थे, वही हमने ओरी में भी कर दिया. अब उसका होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करने के बाद आप चाहोगे ना कि जो मैंने एक होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया है, अगर वो मेरी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया तो मेरे आगे प्रोजनी के अंदर भी वही जीन ऑफ इंटरेस्ट मिले, ताकि अब मुझे दोबारा से होस्ट में ना डालना पड़े. तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का मतलब है लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी सेल्स इज टू बी क्रिएटेड दैट कंटेन रिकॉम्बिनेंट डीएनए. नाउ इज इट क्लियर? अभी क्लियर है पक्का प्रिया? So bioreactor, it is of two type. One, it is called as simple stir tank bioreactor, and the another it is sparse stir tank bioreactor. बेटा बायोरिएक्टर का मेन काम होता है कि आप उस वेसल के अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ कराओ ताकि आपका डिजायर्ड प्रोटीन प्रोडक्ट बन सके, उसे कहते हैं बायोरिएक्टर. बायोरिएक्टर दो तरह के होते हैं, सिंपल स्टायर टाइप बायोरिएक्टर एंड स्पार्स टाइप बायोरिएक्टर. आप देख सकते हो बायोरिएक्टर जो पहले वाला है वो एक तरह का वेसल है जिसके अंदर कर्व्ड बेस प्रेजेंट है. कर्व्ड बेस प्रेजेंट है बेटा. कर्व्ड बेस क्या कराता है? इट अलाउज द मिक्सिंग ऑफ कंटेंट. इट अलाउज मिक्सिंग ऑफ कंटेंट. यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ कंटेंट का मतलब क्या है कि जो भी रॉ मटेरियल आपने इंट्रोड्यूस किया है उसको ऑक्सीजन की प्रोवाइड चाहिए ना. आप जानते हो बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं एरोबिकली, ताकि ऑक्सीजन, रॉ मटेरियल, कल्चर मीडियम ये आपस में एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो सके. तभी आप यहाँ पे वर्ड भी देख रहे हो स्टायर्ड टैंक बायोरिएक्टर. स्टायर्ड का मतलब होता है मिक्सिंग, स्टायरिंग करना, मिक्सिंग करना. तो मिक्सिंग कौन फैसिलिटेट कर रहा है? एक वेसल दैट हैव अ कर्व्ड बेस. इट अलाउज मोर मिक्सिंग ऑफ कल्चर मीडियम विद दैट ऑफ अ ऑक्सीजन पार्ट. दिस फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन कि बायोरिएक्टर एक तरह का वेसल है दैट हैव अ कर्व्ड बेस, सो इज टू अलाउ द मिक्सिंग ऑफ कंटेंट. अनदर पार्ट आप यहाँ पे देख रहे हो मोटर.
बेटा अगर आपने अपने घर पे भी कभी किसी चीज को देखा हो, मोटर वाले पार्ट को, तो आपने उसमें देखा होगा कि मोटर के अंदर एक ऐसा बड़ा सा कुछ लगा होता है और उसमें एक पिन सी जा रही होती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है ना, इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एक छोटी सी पिन होती है जो कि मूव करती है। मूव करने की वजह से इट अलाउज अ मिक्सिंग ऑफ कंटेंट। आप समझ लो लाइक दैट ऑफ अ फैन। फैन की वजह से मिक्स हो रहा है ना, रोटेशन हो रहा है, मूविंग हो रहा है। सो हियर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ मोटर दैट अलाउज स्टायरिंग, ताकि हमारा कंटेंट मिक्स हो सके। इसके अलावा बेटा बायो रिएक्टर के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीजें और भी होती हैं दैट हमें हेल्प करता है माइक्रोबियल ग्रोथ को इन अ लार्ज क्वांटिटी। वन, इट इज अ फॉर्म ब्रेकर। आप यहाँ पे देख रहे होगे ब्लेड प्रेजेंट है, मिक्सर ऑल्सो, यस बेटा, फॉर्म ब्रेकर इज देयर। जैसे आप लोग वॉशिंग पाउडर यूज करते हैं, तो वॉशिंग पाउडर को यूज करने के बाद जब एगिटेशन होता है, मूवमेंट होता है, तो आप देखते हैं थोड़ी देर के बाद फॉर्म बननी शुरू हो जाती है, फॉर्म बनने लगेगा। तो फॉर्म प्रिवेंट करना होगा, क्योंकि फॉर्म जनरली कहाँ पे बनती है, सरफेस पे बनती है या बॉटम पे बनता है? फॉर्म जनरली कहाँ पे फॉर्म होती है, सरफेस पे। अगर यहाँ पे फॉर्म सरफेस पे बन गई तो क्या ऑक्सीजन की सप्लाई डायरेक्टली हो पाएगी? देयर इज अ इनहिबिशन ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। और आप जानते हो कि माइक्रोब की ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो फॉर्म को ब्रेक करना होगा, एंड दैट इज ब्रेक विद द हेल्प ऑफ फॉर्म ब्रेकर। इतना क्लियर है? नेक्स्ट इज फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर। यहाँ पे इम्पेलर का मतलब कुछ नहीं है, बस एक स्टायरर है, मिक्सर है, जो मिक्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड देयर इज अ कल्चर ब्रॉथ ऑल्सो, ताकि कल्चर मीडियम भी मिक्स करें। तो ये दोनों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मिक्सिंग करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और भी ज्यादा। एंड दिस फॉर्म ब्रेकर इट इज यूज टू प्रिवेंट द फॉर्म फॉर्मेशन। बेटा ब्रॉथ का मतलब होता है, जैसे आपको याद नहीं, हमने पढ़ा था यीस्ट के अंदर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ किल्ड यीस्ट इज देयर। वाटर के अंदर जो भी हमारे माइक्रोब्स की ग्रोथ करवाते हैं, दैट इज कंसीडर्ड टू बी एज अ ब्रॉथ ना। यस मोदर। सो कल्चर तो किसी भी चीज का हो सकता है, एक्चुअल में ना लिक्विड मीडियम को कहा जाता है ब्रॉथ, प्रिया। अगर हमारा जो कल्चर लिक्विड मीडियम है, देन दैट इज कंसीडर्ड टू बी एज अ ब्रॉथ। नाउ द नेक्स्ट, आप जानते हो कि इस बायो रिएक्टर के अंदर हम वो सारी कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे ताकि माइक्रोब्स की ग्रोथ हो सके। अभी आपने देखा था कि यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही थी, इसके अलावा स्टायरिंग भी हो रही है ताकि आप इवनली मिक्स कर सको। कर्व्ड बेस भी है, तभी भी आप मिक्सिंग इवनली कर सको। इसके अलावा आप जानते होंगे कि बहुत सारे माइक्रोब्स एक पर्टिकुलर पीएच पे ही ग्रोथ करते हैं। सो वी हैव एसिड बेस फॉर पीएच कंट्रोल ऑल्सो। सो दिस मीन्स दैट वी हैव अ पीएच कंट्रोल सिस्टम ऑल्सो। इज इट क्लियर? इसके अलावा बेटा टेम्परेचर भी जरूरत है कि आप टेम्परेचर को मेंटेन करो। सो स्टीम इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफ स्टेरिलाइजेशन। आप जानते हो ना, स्टीम से स्टेराइल कंडीशंस मेंटेन होती है। मोर एवर यहाँ पे इनलेट और आउटलेट का भी एक प्रोसेस होता है। जैसे अगर हमारा जो अंदर का वेसल है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, तो आप उसमें क्या करोगे, वाटर का सप्लाई कर दोगे। वाटर का सप्लाई करने से टेम्परेचर फिर से क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। सो इन द बायो रिएक्टर coolant is to be added. So in the bioreactor temperature control system is to be added. And the sterile air भी है ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार हो सके। क्लियर है? इसके अलावा बेटा इस डायग्राम के अंदर एक पॉइंट नहीं दिखाया गया, एक पॉइंट वो भी होता है पोर्टिंग सिस्टम, जहां पे जो भी कल्चर मीडियम यूज हो चुका है, जितना भी खाना यूज हो चुका है, वो आप पीरियोडिकली रिमूव कर पाते हो। सो पोर्टिंग सिस्टम, सैम्पलिंग पोर्ट इज ऑल्सो देयर, जहां पे रिमूव्ड किया जाता है जो कि यूज्ड कल्चर मीडियम होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर? यस, ओके। द नेक्स्ट वन इट इज अबाउट द स्पार्श टाइप बायोरिएक्टर। बेटा हमने जितना भी पढ़ा, बेटा स्टेराइल एयर हम लोग ऐड कर रहे हैं ताकि हम ऑक्सीजन की सप्लाई कर सके। सो हम बेटा अगर किसी भी चीज को घुमाते हैं प्रिया, तो उससे फॉर्म क्रिएट होती है ना, किसी भी तरह का झाग बनता है ना, तो उसको फॉर्म को ब्रेक करना होगा ताकि हम उसके एयर की सप्लाई को ब्रेक ना कर दें। सो दिस इज अबाउट द सिंपल स्टायर टाइप टैंक बायोरिएक्टर। द नेक्स्ट इज अबाउट द स्पार्च टैंक बायोरिएक्टर। बेटा स्पार्च का मतलब समझते हो? स्पार्च का मतलब समझते हो? जहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है इन द फॉर्म ऑफ अ बबल्स। आप यहाँ पे देख रहे हो बबल्स मतलब बार बार प्रोड्यूस किए जा रहे हैं ताकि वो ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जा सके। स्पार्च टैंक बायोरिएक्टर के बाद में बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ेंगे। अभी आप बस एक बार ये डायग्राम समझ लो। इस डायग्राम में नहीं दिखा रखा, लेकिन असल में स्पार्च टैंक बायोरिएक्टर में होता किस तरीके से।
बेटा इसके अंदर ना छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा, एयर स्टेराइल कंडीशन, ताकि हम लोग कोई भी इस तरीके की स्टेरिलाइजेशन मेथड यूज करते हैं, जैसे अल्कोहल की फिल्म बना देना, अल्कोहल की फिल्म माइक्रोबियल कंटामिनेशन से प्रिवेंट करते हैं। तो स्टेराइल कंडीशंस प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि कोई भी माइक्रोब्स अंदर एंटर ना करे एयर के थ्रू आस्था, ताकि सिर्फ डिजायर्ड माइक्रोब्स ग्रो कर सकें। क्लियर? चलो मैं स्पार्स टाइम नेक्स्ट टाइम ही कराऊंगी, अदरवाइज वी आर नॉट एबल टू कंप्लीट इट. So the bioreactor topic we will complete in next class. So the revision for you all. आज हम लोगों ने पढ़ा competent host के बारे में, that how the competent host it has to be constructed. It's a request for you all. Please take a pre-read before coming to the class for the bioreactor also and for the complete chapter also. क्योंकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इस पूरे चैप्टर की, तो बिना रिवीजन के प्लीज मत आइएगा. आई डोंट वांट कि आप लोग इनकरेक्ट आंसर करें. ओके, सो नेक्स्ट इज अबाउट द कॉम्पिटेंट होस्ट. हमने कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर आप पढ़ते हो एबिलिटी टू टेक अप फॉरेन डीएनए, कॉम्पिटेंट होस्ट के अंदर फर्स्ट वी हैव डन अबाउट द CaCl2 मेथड, कैल्शियम क्लोराइड मेथड, जिसमें हमने कैल्शियम क्लोराइड प्रोवाइड किया था डाइवेलेंट के टाइम, दैट इज अ कैल्शियम आयन. एज अ रिजल्ट इट इंक्रीजेस परमेबिलिटी, जिससे परमेबिलिटी एनहांस हो गई थी. इस परमेबिलिटी एनहांसमेंट को स्टेबलाइज करने के लिए आपने कोल्ड टेम्परेचर पे रखा था. देन देयर इज अ हीट शॉक ट्रीटमेंट at 42 degree Celsius, then again cold temperature, then after this cold temperature आप उसको ट्रांसफॉर्म्ड सेल में कन्वर्ट कर सकते हो. सो दिस इज अबाउट द कॉम्पिटेंट होस्ट CaCl2 मेथड. इसके अलावा हमने पढ़ा था दैट इज माइक्रो इंजेक्शन. माइक्रो इंजेक्शन हमने पढ़ा था कि यूज किया जाता है इनटू दैट ऑफ एनिमल सेल, जिसमें आप डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट कर लेते हो इनटू न्यूक्लियस. थर्ड वी हैव स्टडीड अबाउट द बॉयलिस्टिक और अ जीन गन मेथड. बॉयलिस्टिक और जीन गन, बॉयलिस्टिक और जीन गन मेथड ताकि स्टेबिलिटी क्रिएट हो सके, ताकि जो आपने परमेबिलिटी चेंज लेकर आए वो दोबारा से रीस्टोर ना हो जाए. बॉयलिस्टिक और जीन गन मेथड, it is used only for that of a plant cell in which microparticle, gold or tungsten coated with DNA के साथ आप कोट करोगे, bombarded with high velocity. हमने पढ़ा था ना बेटा, टेम्परेचर जब हमारा हॉटनेस होता है तो आप जानते हो ना एंजाइमेटिक रिएक्शन फास्टन हो जाती है, तो रिस्टोरेशन कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. कोल्ड टेम्परेचर इनहिबिट करते हैं ये सारी की सारी चीजों को, इनएक्टिवेट करता है. डीएनए बॉम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी. सो दिस इज बॉयलिस्टिक और जीन गन मेथड. इसके अलावा हमने और कौन सा पढ़ा था, दैट इज डिसआर्म्ड पैथोजन. आप जानते हो disarmed pathogen, it is also function to be as a vector for the introduction of DNA into the host cell. And the last one we have done about the electroporation. आज हमने बहुत ज्यादा कम पढ़ा है, थोड़ा सा रिवाइज करके आया कीजिए प्लीज. The next one is about the bioreactor. इसके बाद हमने सिर्फ बायोरिएक्टर के बारे में शुरू किया था कि अगर आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ग्रो करना हो ऑन दैट ऑफ अ लार्ज क्वांटिटी, लार्ज स्केल पे, सो दैट इज कॉल्ड एज बायोरिएक्टर, जिसके अंदर हम वॉल्यूम 100 लीटर से 1000 लीटर तक कल्चर को प्रोसेस कर सकते हैं. फिर हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो तरह के बायोरिएक्टर हैं, वन इट इज सिंपल स्टायरर टाइप टैंक बायोरिएक्टर and the another it is sparge tank bioreactor. So we will discuss all this thing in our next class in detail. So next class के अंदर ये chapter complete किया जाएगा and the full revision of this class. Yes Priya, there is a need for revision to you, otherwise हम लोग lag कर देंगे ऐसे.
Bye, everyone.